Hello students, hope everybody is doing well and your preparation is going very smooth. And so today's sessions we are going to talk about the law of chemical combination, जो कि एक चैप्टर 1 क्लास 11th का है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि मास वॉल्यूम का कंजर्वेशन होता है, उसमें कितना वॉल्यूम हमको रिएक्टेंट चाहिए, कितना हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो वो एक्चुअली में बेसिक कंसेप्ट हम लोग को प्रोवाइड करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जैसे कोई भी रिएक्शन हमारा हो रहा है तो उसमें कौन सा लॉ गवर्न कर रहा है, किस लॉ के तहत वो हो रहा है। कोई चीज़ भी होता है तो बिना किसी लॉ के होता नहीं है, तो केमिस्ट्री में भी एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करके होता है। तो इन दिस सेशंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लॉज। सो welcome to my YouTube channel EduLab. Myself Bakhtiar Khan, having 6 years of teaching experience in physics and chemistry. I have been mentoring students from 2016 onwards. So far I have guided 1000 plus students in offline mode and helped them to crack JEE Main and NET. So in today's sessions we are going to talk about the law of chemical combination, which is from the some of the basic concept of chemistry, chapter 1 class 11. Let us begin our class today. So, the law of chemical combinations. We are interested to know the law of chemical combinations. Chemical combinations. So the first important law which we are interested to know is the conservation of mass. Conservation of mass. Total we have 5 laws. In this we are going to study about the 5 laws. The first important law is law of conservation of mass. We know that the mass can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one form to another. We already know this from the law of conservation of energy में जो हमारा definition होता है कि energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one form to another. In a similar fashion, we have the conservation of mass. So the mass can neither be created nor be destroyed, but it can be seen from one form to another. So the law of conservation of mass says the mass of the reactants and the mass of reactant and products and the mass of products are equal, or we can say in a chemical reactions को ऐसे लिखते हैं, the matter can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one form to another. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन आपके पास हो रहा है, कोई भी रिएक्शन आप लैब में करा रहे हो, तो उसमें जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है और जो मास ऑफ द प्रोडक्ट है, उसका जो कंबाइनिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा, वो इक्वल रेशियोज में कंबाइन करेगा, मतलब मास का कंजर्वेशन होगा। मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी एग्जाम्पल, वी हैव ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल लाइक A प्लस बी अगर दे रहा है
C plus D. C plus D. So mass of A plus B is equal to mass of C plus D. A plus B is the reactant and C plus D is the product. Law of conservation of mass ये बोलता है कि mass of the reactant and the mass of the product will always remain the same in law of conservation of mass. Conservation मतलब क्या होता है कि जितना mass reactant की तरफ होगा उतना mass हमारा product की तरफ होगा. एक illustration देखते हैं. इसमें illustration में हम लोग को पूरा idea हो जाएगा कि law of conservation of mass कैसे हो रहा है. So we have one question here on the basis for the illustration of law of conservation of mass. We have been given a question. In this question, in an experiment, 5 gram of CaCO3 on heating gave 2.8 gram of CaO and 2.2 gram of CO2. So that these results are in accordance with the law of conservation of mass. So law of conservation of mass में क्या होता है? तो before that, we must understand कि इसका reactions कैसे हुआ होगा. CaCO3 on heating, if we heat it, we get CaO plus CO2. कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है. तो in this we have been given the mass of reactant. In this 5 gram of CaCO3, we have here 5 gram of CaCO3, which gave 2.8 gram of CaO. We will write 2.8 gram of CaO and 2.2 gram of CO2. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास हमारा कंजर्व होना चाहिए. तो मास ऑफ CaCO3 is how much? 5 gram. And mass of CaO plus mass of CO2, which is equal to mass of product, is how much? 2.8 plus 2.2. So we have 8 to 10 to the 5 gram. This is mass of reactants. So in this questions we can see that कि mass of reactant जो है हमारा और mass of जो product है वो हमारा same है. यहाँ 5 ग्राम, यहाँ 5 ग्राम. So this is in accordance with the law of conservation of mass. तो हमारा क्या है? 5 ग्राम हमारा मिल गया. तो this is in accordance with law of conservation of mass. तो ये हम लोगों ने illustration से सीख लिया कि किस तरह से conservation of mass होता है. So the next important law, तो हम लोगों ने illustration देख लिया. illustration देख के क्या किया हम लोगों ने law of conservation of mass पढ़ा. law of conservation of mass में mass of the reactant and the mass of the product हम लोगों ने बराबर समझा. ठीक है. लेकिन इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एक्सेप्शन है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल. इट इज not applicable for nuclear reactions. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस. क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि बीटा डिके होता है. बीटा डिके या अल्फा डिके जो होता है उसमें एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का भी फॉर्मेशन होता है. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन न्यूट्रिनो and anti-neutrino.
it will be quite difficult to apply हमारा law of conservation of mass for nuclear reactions. Hope you clear? Hope everybody is clear on this concept कि nuclear reactions पे ये लगता नहीं है. It is not applicable for nuclear reactions because the formation of neutrino and antineutrino besides products. तो कंजर्वेशन ऑफ मास वहाँ पर लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस पर इसको लगा नहीं सकते. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ वी हैव विथ अस is law of constant composition. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है? ये क्या कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, कि वैसा केमिकल कंपाउंड जो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन्ड हो, इन फ्रॉम विच सोर्स it is obtained, the combining element always contain the same element combined together in the same definite proportion by mass. ये डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा क्लियर होना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है. ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इज ऑब्टेन्ड, कि आप कौन से सोर्सेज को लेके आ रहे हो, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, कि आप कोई भी सोर्स से लेकर के आ रहे हो, इट ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. एग्जाम्पल, लेट्स सी एन एग्जाम्पल. अगर हम लोग वाटर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम वाटर लें, चाहे हम इसको हैंड पंप वाटर ले लें या ड्रेन वाटर ले लें, या हम इसको टैंक वाटर ले लें, या हम इसको कैनाल वाटर ले लें, H2O will always combine in the ratio of 2:16, means 1:8. H2O हम कोई भी सोर्स से उठा लें, H2O हम किसी भी सोर्स से उठा लें, H2O को हम किसी भी सोर्स से उठा लें, चाहे हम हैंड पंप से उठा लें, चाहे हम ड्रेन वाटर से उठा लें, चाहे हम टैंक से उठा लें, द कैनाल वाटर से उठा लें, द रेशियो विल ऑलवेज रिमेन 1:8. 1:8 का रेशियो होगा. ये 2 कहाँ से आया? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 2. और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 एटॉमिक मास. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 एटॉमिक मास. ठीक है, तो इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम 1:8. चाहे हम हैंड पंप से उठा लें, चाहे हम ड्रेन वाटर से उठा लें, चाहे टैंक से, चाहे कैनाल से, चाहे कहीं से भी उठा लें, XYZ, the water will always bear the ratio 1:8. This is what the law of constant composition says. Another example अगर हम लोग देख लें कि CO2 अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, the next important example, अगर हमको CO2 बनाना है तो CO2 को हम कैसे बना सकते हैं? C+O2, it gives CO2.
CO2 तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, CaCO3 CaO प्लस CaCO2, या हम CaCO3 को इस तरह से भी कंबाइन करा सकते हैं HCl के साथ। तो हमारा क्या दे सकता है, HCl के साथ अगर हम कंबाइन कराएं तो हमारा क्या दे सकता है, CaCl2 प्लस H2CO3। H2CO3 वीक एसिड होता है, ये टूट जाएगा CO2 और H2O में, ठीक है। ये वीक एसिड होता है, इसीलिए ये डिसोसिएट हो जाता है CO2 और H2। तो CO2 हम यहाँ का उठा लें, CO2 अगर हम यहाँ का उठा लें, या CO2 यहाँ का उठा लें, या CO2 यहाँ का उठा लें, the CO2 ratio will always bear the simple ratio। 12 का टॉपिक, कार्बन का टॉपिक मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना टॉपिक मास होता है 32। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। So we have 2 oxygen, this one is 16 into 2 and this one is 12 into 1, so the ratio we get 12:32। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 के पहाड़े से अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको 4, इसको भी 4 से, तो हमारे पास क्या आता है 4 3 12, 4 8 3:8। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर इनटू 3:8 रेशियो। यहाँ पर भी 3:8 है। सो हम कहीं से भी आपको उठा लें, यहाँ से भी से यहाँ पर 3:8 रहेगा, यहाँ पर भी 3:8 रहेगा। सो द कंबाइनिंग रेशियो विल ऑलवेज रिमेन द सेम। सो द कंबाइनिंग ratio of elements will always remains the same। तो आपका ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है कि आप एक केमिकल कंपाउंड जो लेते हैं जिसमें नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स, कोई भी सोर्स से आप उठा लो, ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। सो वी आर डीलिंग द लॉ विद डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ हमारे पास है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ वी हैव with us law of multiple proportion। law of multiple proportions। इसको पहले डिफिनेशन नहीं समझते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि अगर हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन हमारे पास क्या मिलके बना सकता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है कार्बन एंड ऑक्सीजन बनाने का, या तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, या हमारे पास ये कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। अगर लिमिटेड सप्लाई रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और एक्सेस सप्लाई रहेगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन का, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो ये CO बनाता है। तो इसमें अगर हम बियर रेशियो देखते हैं कि क्या इसमें रेशियो होल्ड कर रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन इस टू ऑक्सीजन कितना रेशियो होल्ड कर रहा है 12:16 कर रहा है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 एटॉमिक मास। अगर हम C+O2 देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन का बियर रेशियो देखते हैं तो 12:16 × 2, तो 12:32। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ये फिक्स कर देना है। इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर हमारे पास 2 कंबाइनिंग एलिमेंट है तो एक को फिक्स कर देंगे। हम लोगों ने 12 को फिक्स कर दिया, 12 को फिक्स कर दिया। अब वेरिएशन हमारा क्या हो रहा है 16:32। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे 16:32 का रेशियो निकालेंगे, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन
रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन CO एंड CO2 कितना हो जाएगा हमारे पास 16:32. सो वी हैव a simple ratio 1:2. ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बोलता है कि अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बना रहा है, एक CO और एक CO2 बना रहा है, उसमें से एक एलिमेंट को हम लोग फिक्स करेंगे और दूसरे एलिमेंट का हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे, 16:32 का रेशियो, वो बियर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो. बियर सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो. अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 2 लेते हैं. एग्जाम्पल 2 में क्या बोलता है हमारे पास, जैसे हमारे पास सल्फर एंड ऑक्सीजन है, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास क्या बना सकता है, SO2 बना सकता है. एक हमारे पास SO3 बना सकता है. यहां पर देखिए सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 32:32 है. यहां पर सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं तो 32:48 है. यहां पर से ये इसका रेशियो, सल्फर और रेशियो का, सल्फर का कितना होता है हमारे पास एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है 16 एटॉमिक मास. तो यहां पर देखिए SO2 में सल्फर का कितना हो जाएगा 16:2, ये है 16:2 और ये कितना है 16:3. तो जो सिंपल रेशियो है उसमें क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है, एक को फिक्स कर देना और उसका रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 एंड SO3 वो कितना हो जाएगा 32:48, विच इज अगर हम लोग 16 से डिवाइड कर देते हैं इसको, यहाँ पर भी 16 से डिवाइड करना होगा तो हमारा आएगा 16:2:3 आएगा. ये सिंपल होल नंबर रेशियो. दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो. सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. एक अगर एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, एग्जाम्पल 3 देखते हैं. इसमें क्या होता है एग्जाम्पल 3, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके हमारे पास कौन कौन सा कंपाउंड बना सकता है, N2O बना सकता है, N2NO बना सकता है, NO2 बना सकता है, N2O3 बना सकता है और N2O5 बना सकता है. ये हमारे पास कंबाइन का. इसका रेशियो अगर हम लोग निकालने जाए 28, 14 से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16. तो व्हाट वी हैव हियर 14:28:16. यहाँ पे क्या है 14:16. यहाँ पे क्या है हमारे पास 14:32. यहाँ पे क्या है 28:48. यहाँ पे क्या है हमारे पास 14:28:14 70, 16:5 80. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, किसी एक को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. यहाँ पे कितना 14 है, इसको 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास और क्या रेशियो आ सकता है 28:16. यहाँ पर क्या आ सकता है 14:28, 28:32. यहाँ पर क्या आ सकता है, इसको हम क्या गलत कर दिए यार 16:32. ओके, हियर वी हैव 14:28:32 64. यहाँ पर देखिए 14:28:48. यहाँ पर देखिए 28:80. इसको ऊपर कर देते हैं, N2O3 को ऊपर कर देते हैं. हमारे पास यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन फिक्स है. अब हम इसका रेशियो निकालते हैं 16:32:64
is to 48 is to 80. What we have? 16 by 16, 16 by 16, 32 by 16, 64 by 16, 48 by 16, 80 by 16. The ratio is 1 is to 2 is to 4 is to 3 is to 5. So we have, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें एक दूसरे को तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा? 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5. This is simple whole number ratio. Simple whole number ratio. पॉइंट क्लियर है? तो हम लोगों को बेसिकली समझाना क्या है, इसमें बोल रहा है कि अगर आप कोई दो एलिमेंट मिल करके, अगर आप कोई दो एलिमेंट लेते हैं, उसका अगर दो एलिमेंट लेते हैं, अगर दो आप एलिमेंट ले रहे हैं, उसका जो कंबाइनिंग हो सकता है CO और CO2 बन सकता है। एक को फिक्स करना है, दूसरे को अकॉर्डिंग टू दैट उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में तोड़े। जैसे 12 है इस टू 16 है, 12 इस टू 16 टू 32 कर देंगे तो हमारे पास काम बन जाएगा। ठीक है, एक को फिक्स करना है, बाकी दूसरे का सिंपल होल नंबर रेशियो में आपको रेशियो निकालना है। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है। लेट्स सी अ न्यूमेरिकल्स। सो वी हैव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें ये बताया है कि एक एलिमेंट है हमारे पास, एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट है हमारे पास जो दो ऑक्साइड बना रहा है, 2 ऑक्साइड्स बना रहा है, और उसमें 50% एंड 40% एलिमेंट का बाय मास प्रेजेंट है। बाय मास का मतलब वेट का रेशियो बता रहा है ये, बाय वेट। प्रूव दैट द रिजल्ट आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कि उसमें किसी एक को फिक्स करना है, दूसरे का रेशियो सिंपल होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट, एन एलिमेंट फ्रॉम 2 ऑक्साइड, एक ऑक्साइड्स बना रहा है, एक एलिमेंट कौन है हमारा A है और दूसरा हमारे पास ऑक्साइड है B। दो एलिमेंट है, दो ऑक्साइड बना रहा है, एक ऑक्साइड ऑफ A बना रहा है, एक ऑक्साइड्स ऑफ A और एक ऑक्साइड ऑफ B, ऑक्साइड ऑफ B, ऑक्साइड्स ऑफ B, ऑक्साइड्स ऑफ A एंड ऑक्साइड्स ऑफ B। एक हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ A बना रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ A, एक हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ B बना रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एलिमेंट का जो मास है, तो वेट ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, वेट ऑफ एलिमेंट A कितना है 50%, 50% बाय मास है, तो मतलब 50% बाय मास का मतलब क्या होता है 50 ग्राम, 50 ग्राम। यहाँ पे क्या बोल रहा है 40% ऑफ द एलिमेंट बाय मास, तो वेट ऑफ एलिमेंट B इज 40% बाय मास। इसका मतलब हुआ 40 ग्राम। अब यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं क्योंकि ऑक्साइड है। ऑक्साइड का एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, हमारे पास सोडियम ऑक्साइड हो गया, इस तरह से हमारे पास ऑक्साइड बन सकता है। ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो लेट अस कैलकुलेट अनदर एलिमेंट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, तो 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 40, तो 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर किसी एक को फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर किसी एक को फिक्स कर सकते हैं। चलिए हम लोग एलिमेंट को ही फिक्स करते हैं।
फॉर एलिमेंट ए हम लोग इसको फिक्स करते हैं, एलिमेंट ए को फिक्स करते हैं। कैसे? देखिए 50 ग्राम ऑफ ए कंबाइन कर रहा है combines with 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ओ। अगर 1 ग्राम लेते हैं ऑफ ए कंबाइन विथ कितना? 50/50। अगर 100 ग्राम लेते हैं तो 50/50 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास फॉर एलिमेंट बी। एलिमेंट बी के लिए हमारे पास वेट कितना? 40 ग्राम है, ऑक्सीजन का वेट 60 ग्राम है। ठीक है, फॉर एलिमेंट बी के लिए हम लोग करते हैं फॉर एलिमेंट बी के लिए अगर हम लोग करते हैं, हम बी को फिक्स करेंगे। कितना वेट है उसका? 60 ग्राम ऑफ बी combines with 40 ग्राम ऑफ ओ। 40 ग्राम आया था ना उसका, 40 ग्राम ऑफ ओ। अगर 1 ग्राम का निकालते हैं और बी कंबाइन करता है 40/60, क्योंकि हमको फिक्स करना है बी को। जितना ए का वेट लिए थे तो उतना बी का भी लेना पड़ेगा। 100 ग्राम ऑफ बी कंबाइन करेगा 40/60 इंटू 100। कहीं मिस्टेक किया है क्या? एक मिनट होल्ड कीजिए। 40 ग्राम ऑफ है ना बी, 40 ग्राम ऑफ बी है, 40 ग्राम ऑफ बी है। फोर्टी ग्राम ऑफ बी 60 ग्राम से कंबाइन करता है, तो 1 ग्राम कितने करेगा? 60/40 करेगा। 100 ग्राम कितना करेगा? 60/40, 40 इंटू 100। ये जीरो कैंसिल, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 250। So we have 150 ग्राम ऑफ O। अगर हम रेशियो देखें, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन एलिमेंट ए एंड बी करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 100:150। इसको हम लोग 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 इस तरफ भी करना पड़ेगा, 25 इस तरफ भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 4:6। इसको और सिंपल रेशियो कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें, इधर से भी 2 से डिवाइड कर दें। 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो 2:3 हमारा क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो। ये क्या है हमारे पास? सिंपल होल नंबर रेशियो। ये हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हम लोग अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का डेफिनेशन। अगर हमको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन अगर हमको डेफिनेशन लिखना है, when two element combines to form 2 or more compound, the different masses
of one element which combines with fixed mass of other element. When two elements combine to form two or more compound, the different masses of one element which combines with the fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio. Simple whole number ratio with one another. So this is the definition of law of मल्टीपल प्रोपोर्शन. इसमें ये बोलता है कि दो एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहा है और फॉर्म कर रहा है दो और मोर कंपाउंड बना रहा है, टू और मोर कंपाउंड, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स, मतलब एक को फिक्स करना है और डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट जो आपका कॉमन है उसका डिफरेंट मासेस होना चाहिए और वन एलिमेंट बियर से सिंपल होल नंबर रेशियो. ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए. तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंबाइन कर रहा है और एक सिंपल रेशियो बना रहा है. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल था कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, जिसमें से एक को हम लोग फिक्स कर रहे थे. यहाँ पर कार्बन को फिक्स कर रहे थे और दूसरा एलिमेंट जो आपस में रेशियो बियर कर रहा था, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन दूसरा एलिमेंट जो आपस में रेशियो बियर कर रहा था, वो एक सिंपल होल नंबर है. यही था डेफिनेशन. अगर मैं पहले डेफिनेशन लगाता तो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल लगा के फुल एक्सप्लेनेशन देने के बाद डेफिनेशन दिया. तो होप ये डेफिनेशन आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा. इसमें कुछ नहीं है. चलिए हम लोग एक चौथा लॉ पढ़ते हैं. 3 लॉ हो गया हमारे पास, 2 लॉ और है, उसको हम लोग देखते हैं. चौथा लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ये हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. इसमें क्या बोलता है ये लॉ? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 2 कंपाउंड, 3 एलिमेंट हम लोग लेते हैं, इसमें से एक H लेते हैं, एक S लेते हैं और एक O लेते हैं. H और S आपस में कंबाइन करके H2S बनाता है. H और O आपस में कंबाइन करके H2O बनाता है. और S और O आपस में कंबाइन करके SO2 बनाता है. यहाँ पर O जो है आपका कॉमन है. किसके लिए? H2O के लिए और SO2 के लिए. इसमें ऑक्सीजन को आपको फिक्स कर देना है, क्योंकि ये कॉमन है H2O के लिए और SO2 के लिए. और H और S का रेशियो यहाँ से निकालना है. इस दोनों से H और H का रेशियो निकालना है. कुछ X/Y आएगा और जो H और S जो आपका रेशियो आया, और यहाँ पर आपको H और S का रेशियो निकालना है. ये हो सकता है Y/Z आए या A/B आए या A/B आए. ये जो आपस में कंबाइन करेगा, ये इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो ये इसका जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा. सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा. यही बोल रहा है. इसमें बोल रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में बोल रहा है कि अगर आप 3 एलिमेंट लेते हो और उसका कंबाइन करके
उसमें से एक एलिमेंट आपका कॉमन होना चाहिए। H और O मिल करके H2O बनाता है, S और O मिल के SO2 बनाता है। यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है उसको फिक्स कर दीजिए आप, और उसमें H और S का रेशियो निकालिए। अगर X:Y आ रहा है और H और S आपस में कंबाइन करके H और S का रेशियो निकालिए, H:B आ रहा है, ये दोनों आपस में बेयर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 हमारे पास है। ये क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 2 ये बोल रहा है कि कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। कार्बन सल्फर मिल करके आपको क्या बनाता है? CH2 बनाता है। ये आपका क्या मिलके बनाएगा? CO2 बनाएगा। ये आपको क्या मिलके बनाएगा? SO2 बना के। अगर हम इसका रेशियो लिखते हैं, एटॉमिक मास हमको पता है कि कार्बन का कितना होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16। अगर हम इसका कंबाइनिंग रेशियो देखते हैं, CH2 में अगर हम लोग देखते हैं कंबाइनिंग रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर कितना है, तो हमारे पास कितना आएगा? कार्बन हमारे पास 12 है और सल्फर हमारे पास 2 है, तो 32 दूनी 64 हो जाएगा हमारे पास। 32 दूनी 64, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा? 3:16 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस CO2 में देखते हैं। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का कितना रेशियो है? कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है? 16 दूनी 32 है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 4 3 से 12, 4 8 से 32। अगर हम SO2 का देखें, सल्फर और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा रेशियो? सल्फर हमारे पास 32 है और ये भी हमारे पास 32 है। यहाँ पर देखिए एक को फिक्स कर दीजिए, 32 हमारा फिक्स है। हमारा ये फैक्टर वैरी कर रहा है, 12 और 32। ठीक है, 12 और 32 का अगर हम रेशियो निकालते हैं इससे, C और S का, इससे 12:32, तो हमारे पास कितना आता है? 12/4 और 32/4, तो हमारे पास कितना आता है? 4 3 से 12, 3:8 का रेशियो आ रहा है। यहाँ पर 3:16 का आ रहा है, तो हमारे पास 3:8, इसको मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 3:8। यहाँ आ रहा है हमारे पास कार्बन सल्फाइड में 3:16 आ रहा है। अब रेशियो निकालते हैं इसका, रेशियो ऑफ C एंड S, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/16 = 3/8, तो ये कितना हो जाएगा? 16। अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 16 = 8 × 16, 16 16 कैंसिल, 8 2 या 16 कैंसिल, तो 1:2 का रेशियो आ रहा है हमारे पास, 1:2, विच इज सिंपल होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंबाइन कर रहा है सल्फर एंड ऑक्सीजन। एक को फिक्स करना है, दूसरे को वैरी करना है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है कि आप H और S को कंबाइन करके H2S बनाते हो, H और O को मिलकर H2O और SO और मिलकर SO2 बनाते हैं। एक को फिक्स करना है आपको, ऑक्सीजन को फिक्स करना है। हाइड्रोजन सल्फर अगर X:Y आता है और A:B आता है और इसका आप रेशियो ले लीजिए, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो देगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। एक दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन और सल्फर मिल करके हमारा CH2 बना रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहा है और SO2 बना रहा है। C और S में इसका रेशियो निकाला, 12:64, 3:16 आया हमारे पास। कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोगों ने उसका रेशियो निकाला 12:32। एक को फिक्स करना हमारे पास, एक को फिक्स करना है, उसमें कार्बन और सल्फर हमारा 12:32 आ रहा है, तो कार्बन सल्फर का निकाल दिया 3:8। अब इस दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है, इस दोनों का रेशियो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो देगा। ये कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन देखिए कि क्या बोलना चाह रहा है। इसका डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है? डेफिनेशंस, when
two element combines separately with a definite mass of the third element, with a definite mass of third element, then the ratio of the masses in which they do so, then the ratio of their masses in which they do so is either the same when two elements combine separately with a definite mass of the third element, the ratio of their masses when they do so is either the same or be a simple whole number ratio or in which they do so is either the same or be a simple whole number ratio in which they combine with each other, in which they combine with each other. यही है हमारा डेफिनेशंस. ठीक है, फिर समझा देते हैं इसको, बहुत आसान है, फिर से समझ जाइए, डेफिनेशन वाइज समझ जाइए ये क्या बोल रहा है. हम लोग न्यूमेरिकल से भी समझेंगे. ये बोलना क्या चाह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट two element combined separately A और B, ये एक दो एलिमेंट है, वो कंबाइन कर रहा है सेपरेटली विद अ डेफिनेट मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट. थर्ड एलिमेंट हमारा C हो गया. व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, देन द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो, इसमें अगर रेशियो ऑफ मासेस आप निकालते हैं A:C और यहाँ पर आप निकालते हैं B:C, इसमें C आपका कॉमन है तो C को फिक्स कर देना है, C को फिक्स कर देना है, इसको C को फिक्स कर देना है. इन विच दे डू सो, जो देन द रेशियो विद देयर मासेस इन विच दे डू सो, अगर हम इससे इस कॉम्बिनेशन से अगर हम A:B का रेशियो निकालते हैं, इन विच दे डू सो इज आइदर द सेम और bear the simple whole number ratio with they do so combine with each other, in which they combine with each other. मतलब आपस में जब ये कंबाइन करेगा, इसका जो A:B का रेशियो आएगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. इसका और इसका रेशियो अगर आप निकालिएगा तो ये बियर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो, यही है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है. तो लेट्स सी अ न्यूमेरिकल. हमारे पास ये क्वेश्चन कि द थ्री एलिमेंट है हमारे पास, द थ्री एलिमेंट है A, B एंड C. वो तीन कंपाउंड बना रहा है, एक AB, एक AC और एक BC, जिसमें AB जो है वो कंटेन कर रहा है 75% ऑफ A, AC में 57.3% of C, while BC में contain 11.1% of B. Prove that this result is in accordance with the law of reciprocal proportions. Law of reciprocal proportions हम लोग को प्रूव करना है. तो हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं. यहाँ पर देखिए, एक चीज़ नोटिस कीजिए कि A, B और C मिलकर तीन कंपाउंड बना रहा है, AB,
AC और BC। हमारे पास कॉमन क्या है? अगर हम लोग देखने जाएं तो AB और AC में क्या कॉमन है? A कॉमन है, तो हम लोग A को नीचे बनाते हैं, B को यहाँ पर बनाते हैं, C को यहाँ पर बनाते हैं। ये आपस में कंबाइन कर रहा है AB, AC और BC। AB कंटेन 75% ऑफ A। ये हमारा AB बना रहा है, ये हमारा AC बना रहा है, ये हमारा BC बना रहा है। इस तरह का डेटा हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, परसेंटेज ऑफ A अगर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 75%, और परसेंटेज ऑफ B कितना होगा? 100 माइनस 75 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25%। यहाँ पर चलिए, परसेंटेज ऑफ A कितना दिया हुआ है? AC में परसेंटेज 57 पॉइंट, परसेंटेज ऑफ C कितना दिया हुआ है? 57.14% दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ A यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 57.14%। इसका निकालेंगे तो 100 माइनस 57.4 कितना आएगा? 100 माइनस 57.1400। 10 में से 4 कटा 6, 9 में से 8 कटा, 9 में से 1 कटा 8, 9 में से 7 कटा 2, 42। क्लियर? तो ये कितना दे रहा? 42.86% दे रहा। BC में कितना है? परसेंटेज ऑफ B कितना है हमारे पास? परसेंटेज ऑफ B कितना है? परसेंटेज ऑफ B कितना दिया हुआ है हमारे पास? 11.11% दिया हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ C कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 माइनस 11.11%। तो ये कितना हो जाएगा? 111.11। 10 में से 1 कटा 9, 9 में से 1 कटा 8, 9 में से 1 कटा 8, 8, 88.89। तो 88.89% हमारा दिया हुआ है। ये सारा डेटा हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हमारे पास A कॉमन है, हम लोग A को फिक्स करते हैं, A को फिक्स करते हैं इस दोनों में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये परसेंटेज हमारा बाय मास है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बाय मास है। अगर एक्सप्रेस कर देगा तो हम लोग को इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन चलना पड़ेगा। जब हमारे पास कुछ एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है तो ये 57.5% बाय मास है। जितना भी डेटा दिया हुआ है ये बाय मास है, ठीक है। जब तक अनलेस अनटिल एक्सप्रेस ना कर दिया जाए कि ये बाय वॉल्यूम है, हम लोग को कंसिडर करना बाय मास है। तो यहाँ पर देखिए, एक को हम लोग को फिक्स करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग का एक है, यहाँ पर भी A है, A को फिक्स करते हैं। तो इन AB कंपाउंड में चलते हैं। पहले AB में 75 ग्राम ऑफ A कंबाइन किससे कर रहा है? 25 ग्राम ऑफ B। अगर 1 ग्राम लेंगे तो 25/75। हम लोग 100 में करते हैं ताकि आसान रहेगा हमारा कैलकुलेशन। आप 1 ग्राम पर भी छोड़ सकते हो, अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब 100 ग्राम ले लो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 100 ग्राम ऑफ A कंबाइंस विथ 25/75 इंटू 100 ऑफ B। तो ये हमारा रेशियो कितना आता है? 25 3 100/3 कितना हो जाएगा? 33.33 ग्राम ऑफ B। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं। अब हमारे पास क्या कंपाउंड है? अब हमारे पास कंपाउंड है AC। AC में परसेंटेज ऑफ A कितना? 42.86 है। परसेंटेज ऑफ C इतना है। हम लोग को A को फिक्स करना है, ठीक है, क्योंकि A कॉमन है वहां पे। AC इन AC तो
तो AC में हमारा क्या है कि परसेंटेज ऑफ A कितना है, 42.86% है। 42.86 ग्राम ऑफ A कंबाइन करता है 57.14 ग्राम ऑफ C। 1 ग्राम पर निकालते हैं 57.14 डिवाइडेड बाय 42.86 ग्राम ऑफ C। 100 ग्राम पर निकालते हैं कंबाइंस विथ 57.14 डिवाइडेड बाय 42.86 इंटू 100। मैंने इसका कैलकुलेशन कर रखा है, तो 57.14 डिवाइडेड 42 इसका आता है 133.3 ग्राम ऑफ C आता है। ठीक है, अब हम इसका रेशियो निकाल देते हैं, A और C का रेशियो निकाल देते हैं। किसका रेशियो निकालना पड़ेगा हम लोग को? B और C का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ B एंड C किस में निकालना है? AB और AC में निकालना है, राइट? AB एंड AC। हम लोगों ने A को फिक्स कर रखा है, B और C का रेशियो निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट? 33.33 इज टू 133.3। तो हमारे पास कितना रेशियो आ रहा है? ये लगभग आएगा 1:4 का रेशियो। और हमारे कंपाउंड में कितना दिया हुआ है रेशियो ऑफ बी एंड सी, उसका रेशियो देख लेते हैं। बियर कितना है? बी और सी का रेशियो कितना है? 11.11% और यहाँ पर 18.89%। इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ बी एंड सी इन बी सी कितना है? वो कितना रेशियो है? 11:11:88.89। तो ये लगभग कितना आ रहा है? 1:8 का रेशियो आ रहा है। अगर हम इस दोनों रेशियो को डिवाइड कर देते हैं, 2 रेशियो को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, इसको इक्वेशन मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, तो डिवाइड 1 to 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4:1/8। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 4, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, इधर भी 8 करते हैं, इधर भी 8 करते हैं, ताकि हमारा रेशियो क्या आ जाए? होल नंबर आ जाए। तो हम लोग वैसा फैक्टर चूज करेंगे जो होल नंबर रेशियो दे और वो सिंपल होना चाहिए। 4 2 8 2:1। तो हमारा फाइनली कितना आ रहा है? B/C का रेशियो जो आ रहा है हमारा 2:1 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यही बोलता है कि हम लोग को अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहा और वो आपस में जो कंबाइन करने का रेशियो है, वो आपस में जो कंबाइन करने का रेशियो है, आपस में जो कंबाइन करने का रेशियो है और एक इंडिविजुअली कंबाइन करके जो रेशियो बना रहा है, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो हम लोग कहते हैं कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को होल्ड करता है। इट होल्ड्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि इट होल्ड्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब हमारे पास एक लास्ट लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह है। वहां पर बाय मास के लिए होता था, यहाँ पर बाय वॉल्यूम की तरह। तो जैसे हमारे पास ये एक रिएक्शन है, H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O होता है। इसको हम लोग बैलेंस कर लिया, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। ये सब गैस है,
ये गैस है, ये गैस है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। तो हम कह सकते हैं कि 2 वॉल्यूम of hydrogen combines with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water vapor। इस तरह से हमारा रेशियो कंबाइन कर रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। तो रेशियो का कंबाइनिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? तो कंबाइनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 2:1:2। ये हमारा कंबाइनिंग, ये सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर होता था, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम में तो जितना वॉल्यूम 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से, तो ये दे रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। समझ गए? तो अब देख सकते हैं कि कंबाइनिंग रेशियो हमारा क्या बियर कर रहा है? सिंपल होल नंबर रेशियो बियर कर रहा है। बियर सिंपल रेशियो। बाय डेफिनेशन अगर चलें तो ये बोलता क्या है कि बाय डेफिनेशन डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है इसका? डेफिनेशन बोलना चाहता है कि when 2 or more gases react with their volume basis, when 2 or more gases react with one another, when 2 or more gases react with one another, it bears a simple whole number ratio. Simple whole number ratio, सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर is to be kept constant, टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि प्रेशर वैरी करने से नंबर ऑफ मोल्स वैरी करता है। वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशंस, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेशर के वेरिएशन से नंबर ऑफ मोल्स कैसे वैरी करता है। इसलिए गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में बोल दिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है, ताकि हमारा नंबर ऑफ मोल्स वैरी ना करे और ये लॉ होल्ड करे। तो ये लॉ यही बोलता है कि जो गैसेस आपस में कंबाइन करता है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं कि जैसे H2 है प्लस Cl2 आपस में कंबाइन कर रहा है, तो ये 2HCl गैस दे रहा है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इसका रेशियो, कंबाइनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:2, which is nothing but a simple whole number ratio. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपको इसका न्यूमेरिकल पूरा भरपूर मात्रा में कराया जाएगा। सारा न्यूमेरिकल्स हम डील करेंगे। सब जेई मेन और नेट का एक सेपरेट सेशन होगा। पहले ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ न्यूमेरिकल से आपको समझाया जाएगा, कुछ डेफिनेशन जैसे आज मैंने पढ़ाया। ठीक इसी तरह चैप्टर्स हमारा चलेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर वी विल हैव अ सेपरेट सेशन फॉर जेई एंड नेट एंड फॉर क्लास 11th and 12th क्वेश्चंस। So we will be separately looking into those questions. So don't worry for questions. There are many questions. I have lot of questions banked with me. मैं सारा questions आप लोगों को करा दूंगा। क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं आएगा और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि नीट और जेई मेन में हमारा क्वेश्चन आपको मेरे नोटबुक से डायरेक्ट मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलता है, हमारा फिजिक्स में मिलता है,
सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है इतना। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही है। आप लोग इस सेशंस को रिवाइज कीजिए और इसमें हर एक डेफिनेशन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो डाउट होता है हमें बताइए, तो मैं आपको हेल्प आउट करूँगा और आपको एक टेक्स्ट बुक बता देंगे। वो टेक्स्ट बुक आप मार्केट से खरीद लीजिएगा और वो मार्केट से खरीदने के बाद आप रीड करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स लगाइएगा, तो आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कॉन्सेप्ट का। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में मोड पे ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर या ईमेल पर हमको इंटीमेट कीजिए। आई विल कैच यू अप देयर एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।